and celebrate Christmas. Amen. This is Christmas season. I know last year has been very hard, और मुझे पता है पिछला साल बड़ा मुश्किल निकला, but I thank God that this year doors are open so that people of God can come together and celebrate Christmas. लेकिन इस बार दरवाजा खुला है ताकि परमेश्वर के लोग मिलकर आकर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। And special thanks to Pastor Suhail and his team, those who organized this meeting. और स्पेशल थैंक्स है पास्टर सुहेल और उनकी टीम के लिए और जितने भी लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर And रहे this is हैं। our prayer that you will continue meeting together to glorify the name और of हमारी Christ. प्रार्थना है किसी तरीके से आप लोग इकट्ठे होकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। It's such a beautiful thing when children of God dwell together in unity. और ये बहुत खूबसूरत बात है जब परमेश्वर के लोग एकताई में होकर इकट्ठे रहते हैं। You know, a couple of years back, I have two sons. Both were not speaking with each other. I saw for a couple of days. कुछ साल पहले मैंने एक बार मेरे जो दोनों बेटे थे वो आपस में बात नहीं कर रहे थे And my heart was so broken seeing that they are not speaking to each other. और मेरा दिल बहुत दुखी हुआ इस बात को देखकर वो आपस में बातें नहीं कर So रहे I, as हैं। a father, had to sit with them for a couple of days to sort out their issues so that they can come together and have fellowship together. और एक पिता होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं दोनों को इकट्ठे बुलाकर जो भी उनके मसले हैं उसे हल करूं ताकि वो इकट्ठे रह सकें। And I'm so happy. I'm so proud of them. और मैं बहुत गर्व करता हूं उन And पर। imagine how happy God is, our Father is, Heavenly Father is when His children come together in और ये बात unity. सोचकर या देखें कितने परमेश्वर पिता खुश होते हैं जब उनके बच्चे इकट्ठे होकर आते हैं। This is the time to forget everything of the past and start something fresh. और ये समय है पिछली बातों को भूलकर कुछ नया शुरू करने का, Because we are living in very exciting days. क्योंकि हम बहुत ही अच्छे दिनों में, एक्साइटेड दिनों में रह रहे Because हैं। we are living in days when God said, I will pour out my spirit upon all flesh. क्योंकि हम उन दिनों में हैं जब परमेश्वर ने कहा है मैं अपने आत्मा को हर एक के ऊपर उड़ेल दूंगा। And this is a time to prophesy. This is the time to see visions. This is the time to be fire carriers. और ये समय है परमेश्वर की आंख को लेकर चलने का, दर्शन देखने का और प्रॉफिटिक वर्ड बोलने का। And I just want to read the Gospel of John chapter 6 verse 38. यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 38 आयत। For I have come down from heaven not to do my will, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने but the के लिए will of स्वर्ग him, से उतरा हूँ, but the will of him who sent me. लेकिन उसकी इच्छा जिसने मुझे भेजा है। Jesus Christ is a great doer. प्रभु यीशु मसीह एक बहुत काम करने वाले हैं, वो करता है। He came and accomplished and fulfilled what he was sent for. और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर वो किया जो उनको करने के लिए भेजा गया। Once we've given our life to the Lord, our life fully belongs to him. और जब हम प्रभु को अपनी जिंदगी देते हैं, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से उनके हवाले होती First है। Peter talks about we are born again by the word of God. और पहला पत्रस कहता है हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म So पाया this है। new life that we have received is by the word of God. और ये जो नया जीवन हमें मिला है वो प्रभु के वचनों के द्वारा मिला है। Gospel of John chapter 1 also talk about word becoming flesh. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय भी बताता है कि वचन ने देहधारी हो गया। So Jesus, the word that took on flesh. और यीशु जो वचन है उन्होंने जिस्म को पहन लिया। And now through Holy Spirit he abides in us. और अब अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर रहते The हैं। day Jesus Christ comes in our life, from that day onwards we begin a new life. और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं उस दिन से हमारी जिंदगी नई जिंदगी हो जाती है। Many times we think that yes, Jesus came so that we can receive salvation. हाँ, कई बार हम सोचते हैं यीशु इसलिए आए ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। Many times we think that Christmas or giving, Jesus came just for our salvation. और कई बार हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें मुक्ति देने के लिए आए। But there are so many things Jesus came for. लेकिन कई बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। He came to destroy the work of the devil. प्रभु यीशु आए ताकि शैतान के कामों का नाश हो He सके। came to break the curse over our lives. और वो आए ताकि हमारे ऊपर श्राप टूट जाए। So that he came so that he can deliver us from darkness and bring us into his marvelous light. और वो हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपनी ज्योति के राज्य में ला सके। And not only that, the main thing, he came to establish his kingdom on this earth. और सबसे बड़ी बात वो इस धरती पर अपने राज्य की स्थापना करने आए। The day I got saved, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, so I thought Jesus just came to save me. और मुझे लगा यीशु से मुझे बचाने आए हैं। And one day he'll come and he'll take me away. और एक दिन वो आएंगे मुझे अपने साथ वापस ले But जाएंगे। later on when I started reading the Bible, लेकिन जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, even the Lord's Prayer which people pray, और कई बार जो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना लोग there करते हैं, Jesus taught them, Father, pray that his kingdom come. और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ऐसे प्रार्थना करो कि उनकी बादशाहत आए। So he came to establish his kingdom.
यीशु इसलिए आए ताकि पिता की बादशाहत यहाँ पर स्थापित हो, so that king's will be done on this earth as it is in heaven. ताकि राजा की इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। Not just to be saved, for us to be saved, but it's more than that. सिर्फ हमें बचाने ही नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर। Amen. आमेन। He wants to rule and reign through you all, and through us all. और वो हमारे द्वारा यहाँ पर राज करना चाहते हैं। He wants to bring a transformation in this world. और वो इस दुनिया में एक बदलाव को लाना If चाहते you are हैं। here in UK today, अगर आज आप यूके में हैं, God has a purpose for your life. परमेश्वर का आपकी जिंदगी से एक मकसद है, And that should be your food every day to fulfill the reason why He has chosen you. और यही हमारा दिन भर का खाना होना चाहिए। Not just that we are saved and will go to heaven. और सिर्फ यही नहीं कि हम बचाए गए हैं, अब हम स्वर्ग चले It's जाएंगे, much more than that. लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर It's है। to know the purpose of your life. और ये ऐसे है अपनी जिंदगी का हम मकसद पता करें। Amen. आमेन। Christmas is all about not only being saved, but knowing that we have a Savior and He has a plan for our life. और क्रिसमस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बचाए गए, लेकिन इस बात के लिए है कि हमारे सेवियर का हमारी जिंदगी से एक प्लान है। Amen. आमेन। Many people, they don't know that God has a plan for their life. और बहुत लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर का उनकी जिंदगी से एक मकसद है। Many people, though they are saved, they still live the worldly way. और कई बार लोग बचाए जाने के बाद भी अपनी जिंदगी दुनियावी तौर तरीके से जीते Many हैं। people will only remember Jesus when Christmas season comes. और कई लोग ऐसे हैं, उनको यीशु तभी याद आएंगे जब क्रिसमस का मौसम There are आएगा। some believers I know, they only go to church on the Christmas day. कई ऐसे बिलीवर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, सिर्फ वो क्रिसमस के दिन Or ही maybe जाएंगे, on Easter they will go to और या church. तो सिर्फ ईस्टर के दिन जाएंगे, Because they are still lost. क्योंकि अभी भी वो खोए हुए हैं। Every day your food is to do the will of your Father. आपकी प्रतिदिन की रोटी है अपने पिता की इच्छा को पूरा He करना, has chosen you, has called you for a purpose. क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया है, आपको चुना है। So अपनी- He has called you so that you will be a light unto the nations. उन्होंने इसलिए आपको बुलाया है ताकि आप जगत के लिए ज्योति बन जाओ, He has called you so you will be a light in your office, और ताकि आप अपने ऑफिस में लाइट in your business. अपने कामों में लाइट बन Wherever जाओ, you go, He wants you to be the light. और जहां भी आप जाओ वहां पर वो आपको उजियाला बनाना चाहते He हैं। wants to reveal Himself through your lives, और आपकी जिंदगी के द्वारा वो अपने आप को जाहिर करना चाहते through हैं, your talk, through your walk, through your everything. आपकी बातों के द्वारा, आपके चलने के द्वारा, आपकी हर एक चीज के And द्वारा। my question is, are we eating our food every day? लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हम रोज की अपनी रोटी Be- खा रहे हैं? Because Jesus said, my food is to do the will of my Father. क्योंकि यीशु ने कहा मेरी रोटी है अपने पिता की इच्छा को How पूरा many of करना। you know that God is your Father? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आपके पिता हैं? How many of you know that He has will? और कितने लोग ये जानते हैं कि उनकी भी इच्छा है, He wants something to be accomplished on this earth. और वो चाहते हैं इस धरती पर कुछ पूरा हो। But how many of you really participate to see His will being fulfilled? लेकिन आप में से कितने हैं जो इसमें भागीदार हो जाते हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? First century Christians, they participated with Jesus to accomplish His will. जो पहली शताब्दी की कलीसिया के विश्वासी थे, उन्होंने प्रभु के साथ भागीदारी करी ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। Many were killed, many were martyred. कई लोगों को मार दिया गया, कई They लोग sold शहीद हो all the गए, property they had और जितना भी उनके पास धन संपत्ति था सब and उन्होंने brought बेच it to दिया, the apostles और प्रेरितों के कदमों पर ले आए, so that the gospel can be preached throughout the world. ताकि सुसमाचार दुनिया के कोने-कोने तक They पहुंचाया जा really सके। understood the purpose of their life. और उनको समझ आया उनकी जिंदगी का मकसद, They knew that there is a glorious life waiting for them in और heaven. उनको पता था स्वर्ग में एक बहुत महिमामय जिंदगी उनका इंतजार कर But रही as है। long as they knew they are alive, they have to establish His kingdom. लेकिन उनको पता था जब तक वो जिंदा है उनको परमेश्वर की बादशाहत को स्थापित करना है। When Jesus was on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, people wanted to make Him king. लोग उनको राजा बनाना चाहते थे, They wanted to make Him king. और वो उनको लोग राजा बनाना चाहते थे। But He said, my kingdom is not of this earth. और यीशु ने कहा मेरी जो बादशाहत है इस धरती की नहीं है। But then why did He said His kingdom come? लेकिन क्यों फिर उन्होंने कहा कि उनकी बादशाहत आए? Because Jesus wanted to rule and reign through His church, through His body on क्योंकि this earth. यीशु चाहते हैं वो अपनी कलीसिया के द्वारा इस धरती पर शासन करे, राज करे। Amen. Amen. He wants to see a transformation in this in the nations of the और world. वो देखना चाहते हैं दुनिया की कौमों में एक बदलाव को। How will that come? वो कैसे आएगा? When His church arises. जब उनकी कलीसिया खड़ी हो जाएगी। Imagine if a person has a big head, आप खुद सोचकर देखो, एक व्यक्ति जिसका बड़ा सिर होता है, so much knowledge, knows everything, और उसको दिमाग पूरा भरा है हर but ज्ञान his से, body cannot work.
लेकिन जो उसका जिस्म है बाकी हिस्सा वो काम नहीं Hands कर are not सकता। working. हाथ काम नहीं करते, Feet are not working. पैर काम नहीं करते, Fingers are not working. उंगलियां काम नहीं करती। What can that person do? Can't achieve much. वो व्यक्ति कुछ भी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकता। So, but we as a body of Christ, लेकिन मसीह की देह होने के नाते we have to understand हमें ये समझना होगा that every part of that body has a role to play. हर एक जिस्म के हिस्से का काम करने का एक रोल है। Why do we go to church on Sundays and other meetings? और हम क्यों हर दौरान संडे को मीटिंग्स में जाते It's हैं? not just to have another religious service. ये इसलिए नहीं है कि एक और धार्मिक समारोह में हम चले It's जाएं, not just to have a beautiful, glorious life. और ये इसलिए भी नहीं है कि बस एक महिमामय जिंदगी हमें It's मिले, to participate, come together as a body of Christ to see the will of God being established on ये this earth. इसलिए है ताकि हम इकट्ठे तौर पर आएं और इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा To कर सकें, receive divine guidance from God and do what He has called us to do. और जो कुछ उन्होंने हमें करने के लिए बुलाया है उसके लिए वो हमें अलौकिक गाइडेंस दे सकें। Amen. आमीन। I am not going to take much time, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, but I just want to end with this. लेकिन मैं इस बात से ही अंत करना चाहता हूँ, That Christmas is not just about salvation. क्रिसमस सिर्फ मुक्ति पाने तक ही नहीं है, Because many people will lose it. क्योंकि बहुत लोग अपनी मुक्ति को गवा भी बैठे This is हैं, something that can be lost. और ये एक ऐसी चीज है जो खोई जा सकती Many है। people think they are saved, but they are not saved. कई लोग सोचते हैं वो बचाए गए हैं लेकिन वो बचाए नहीं गए I'm हैं। not judging anyone here. God मैं- knows your heart and He knows my heart. मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर आपका दिल भी This is जानते हैं और मेरा between दिल us भी, and God. लेकिन ये हमारे और परमेश्वर के बीच में Because है। I know once a person is saved, when a person is saved, मुझे पता है जब एक व्यक्ति छुटकारा सेव्ड हो जाता है, there is a visible fruit that you can see. उस व्यक्ति की जिंदगी से एक फिजिकल फल फ्रूट होता है If जो someone दिखाई says, देता I है। have Christ in my heart, अगर कोई कहता है मसीह मेरे दिल में है, there is a visible fruit that you will see in that person's life. और अगर वह व्यक्ति ऐसा कहता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में आप एक फल देखोगे जो दिखाई देगा। Because if we have Christ in us, अगर मसीह हमारे अंदर है, what will Christ do? मसीह क्या करेगा? Will He forgive? क्या वो क्षमा करेगा? Will He love? क्या वो प्यार करेगा? Will He preach the gospel? क्या वो सुसमाचार प्रचार करेगा? Will He pray for others? क्या वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा? Will He work to bring unity in the body of Christ? क्या वो मसीह की देह में एकताई लाने के लिए काम Will करेगा? He heal the sick? क्या वो बीमारों को चंगा करेगा? Will He live in holiness? क्या वो पवित्रताई में जिएगा? Will He walk in truth? क्या वो सच्चाई में चलेगा? So if we really have Christ, अगर हमारे पास सच में मसीह है, let that Christ be visible from today onwards. आज से क्राइस्ट हमारी जिंदगी से विजिबल हो जाए। As we are entering into next year, और जैसे हम नए साल में एंटर करने जा रहे हैं, let's move forward with this oath or vow or a covenant word with God that Lord, we are going to reveal you through our lives. और जब आप नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं, इस वचन से परमेश्वर के साथ एक वचन बंद हो जाएं कि परमेश्वर आपकी कैरेक्टर को मैं अपनी जिंदगी से रिवील And करूंगा, let's be very active children of God for the glory of kingdom. और बहुत एक्टिव हो जाएं प्रभु के कामों में ताकि उनको महिमा मिले। Amen. Amen. I have seen the people who are active मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत जोश वाले हैं, will not easily fall in sin. वो जल्दी से गुनाह में नहीं गिरेंगे। Do you know what season we are living in? आपको पता है हम कैसे सीजन्स में रह रहे We are हैं, living in a season when kings go out for war. और हम ऐसे सीजन्स में रह रहे हैं जब राजा लोग युद्ध में जाते हैं। David, he was supposed to go out for war, जो दाऊद था वो उस सीजन में युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए था but उसे। he was walking on the rooftop and he fell in sin. लेकिन वो क्या कर रहा है, छत पर टहल रहा है और वो गुनाह में गिर गया। But this is the time to arise for God. ये समय है परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। Arise, shine, for your light have come. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया As है। we are celebrating, there is so much of light. और जैसे हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत लाइट्स हैं, Outside some houses, there is so much light. और घरों को भी लोगों ने लाइट्स के साथ डेकोरेट I किया pray है। that not only those will be the lights, but the true lights will shine from this year मेरी प्रार्थना onwards. ऐसी वही लाइट नहीं होगी, लेकिन सच्ची लाइट हमारी जिंदगियों से प्रकाशमान Shall we होगी। close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को Father, बंद we करें। just want to thank you for this time. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के Thank you लिए, for this coming together of your body, coming together in one place. और इस जगह पर मसीह की देह एक होकर हम आते हैं, We are together the body of Christ. और मसीह की देह हम एक हैं। Holy Spirit, I pray that you touch each and every one this evening. पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर एक को छू लें, Let fire upon each and every person. हर एक के ऊपर आपकी आग उतरने Let your पाए, fire
burn in each and everyone's heart, और आपकी आग हर एक के दिल में जले, that every one of them will live for the glory of your ताकि kingdom. हर कोई आपकी महिमा के लिए इस जिंदगी में जिए, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Shall we give the आमीन, Lord a clap आमीन। offering? आइए